Hello, good morning. Hello, good morning to everyone. It is my second lecture for organic chemistry. As we all know, uh, who's a student who are not attending the my classes, then they have to take first of all that class, and unless they can't understand whatever I read and whatever I teach you, so please go back and see my first lecture. So let's start with the second lecture. In this lecture, we will discuss about the nomenclature of haloalkane and haloarenes. Especially, we will discuss the haloalkane first, and then second we will discuss haloarene. Okay. So first of all, let's we start nomenclature of haloalkane. We will start with the simple method, which is you can see here. Your first example is you can see there is 3 carbon and one halo group is added, which is bromine, and bromine group is added on carbon number first. So you can see here is this compound is 1-bromopropane, and another its common name also we also need to out the common name of the compound. So what is the common name of this compound? Common name of this compound is n-propyl bromide. how how will we decide it? How we can say it is a n-propyl bromide? It is n-propyl bromide. How? When we will see it, the example of this, then we can see there is the bromine group is on first carbon. So first carbon is shown by n, which is 1. We will, if you give the numbering of the carbon compound, then we will see carbon number first, carbon number 2, carbon number 3. Okay. Then carbon number 2, 1, 2 and 3. Then methane, ethane and propane. Then propyl bromide. Okay, it is clear to everyone. Now we will come with the second example. In this example, you can see uh, is a chlorine compound is attached with the second carbon from whatever side you can choose. uh, that is a no effect with the chlorine compound and also carbon compound. So we will start with the numbering. Numbering which we can start from left side. We can also start with the right side. There is no effect. Okay, then we will start carbon number 1, carbon number 2 and carbon number 3. Then and chlorine compound is added on carbon number 2. Then methane, ethane and propane. ठीक है. So कार्बन नंबर 2 पे आपको क्लोरीन दिखेगा. तो क्लोरीन से आप कैसे निकालेंगे? कार्बन नंबर 2 पे अगर क्लोरीन है मीन्स 2 क्लोरो एंड 1 2 and 3 then propane, meth eth propane. ठीक है. Now again we will coming on the third example. Third example is 1 chloro 2 methyl propane. How you give it the number? uh, let's we will numbering of that compound. Let's start. Okay. Carbon number first, where we will start in this compound. We can start from the carbon number first, which is attached with the chlorine compound. Okay, then we will start the numbering. Carbon number first, carbon number 2, carbon number 3. Okay, now you can see each carbon number 1 is occupied by chlorine compound, and carbon number 2 is also occupied by methyl group. Then whatever this name of this compound is 1 chloro 2 methyl and propane, means 2 पे इस पे methyl group मिलेगा आपको. Okay, now it is clear for everyone. Now we will come with the second example, which is
विच इज हेलो एरियन ग्रुप. ओके, आपको समझ में आया हेलो एल्केन ग्रुप्स का अपना नॉमेनक्लेचर कैसे करता है? हाँ, क्लियर. नाउ वी विल कम द second example, which is haloarine. Okay, haloarine compounds are those compounds who are having ring means benzene ring. Okay, benzene ring attached with the halo group is known as haloarine. Okay, arine group उनको बोलेंगे जो कि एक रिंग स्ट्रक्चर मिलता है. जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल, यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है. लेकिन आपको एक चेंजेस मिलेगा, यहाँ पे आपको एक ब्रोमीन का एक कंपाउंड मिलेगा, यहाँ पे 2 कंपाउंड मिलेगा और यहाँ पे 3 कंपाउंड मिलेगा. तो इसकी अपन नंबरिंग कैसे करेंगे, कहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे? तो अब मैं स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से. ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन नंबर, यहाँ पे फर्स्ट पे आपको ब्रोमीन मिल रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे अपन ब्रोमो बेंजीन बोलेंगे. ठीक है, नाउ इट इज़ क्लियर. नाउ कम विद द सेकंड एग्जांपल. हियर वी कैन सी कार्बन नंबर फर्स्ट पे आपको यहाँ पे अपन यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं, है ना. तो यहाँ से अगर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 and 3 and 4 5 and 6. Okay, clear. 6 means 1 2 and 3. कार्बन नंबर 1 पे ब्रोमीन, कार्बन नंबर 3 पे ब्रोमीन. ठीक है, तो आप क्या इसका नाम, आप क्या नाम देंगे इसको? 1 3 1 and 2 डाइब्रोमो. ठीक है, 1 पे और 3 पे डाइब्रोमो एंड बेंजीन. ओके, नाउ कम विद द थर्ड एग्जांपल, व्हिच इज कार्बन नंबर फर्स्ट पे ब्रोमीन, सेकंड पे कुछ भी नहीं है, थर्ड पे ब्रोमीन, 4 पे कुछ भी नहीं है, 5 पे ब्रोमीन एंड 6 खाली है. अगर आपको 2 4 6 खाली है और 1 3 और 5 पे मीन्स 1 3 एंड 5. 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन. Okay, now we will come with the last example, which is 1 chloro 2 dimethyl propane. इसका नाम कैसे दिया हमने? यहाँ पे अपन सीखेंगे. यहाँ पे आपको एक कार्बन दिख रहा है ना. तो यहाँ से अपन स्टार्ट कहाँ से करें? इसमें जनरली क्या होता है, अपने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देखा जाता है ना. कंपाउंड का जो होता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखा जाता है ना. अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग होता है. जैसे यहाँ पे आपको क्लोरीन कंपाउंड है, क्लोरीन का C अपन लेंगे. ठीक है, यहाँ पे अपन मेथाइल ग्रुप भी एडेड है, लेकिन यहाँ से अपन स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि मेथाइल जो आता है M आ रहा है, M से पहले यहाँ पे आपको C मिलेगा. ठीक है, यहाँ इसलिए अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे कार्बन क्लोरीन से. ठीक है, यहाँ पे जिस कार्बन पे कार्बन क्लोरीन आपको जुड़ा हुआ मिलेगा वहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे. तो मेथाइल ग्रुप 1, ठीक है, 2 एंड 3 कार्बन. ठीक है, इसके अंदर 3 तो कार्बन हो गए यहाँ पे. तो 1 2 2 पे 2 मेथाइल ग्रुप मिल रहा है आपको. ठीक है, और 1 पे आपको क्लोरीन मिल रहा है. ठीक है, यहाँ आपको कैसे करेंगे? 1 क्लोरो 2 डाईमिथाइल प्रोपेन. 1 क्लोरो 2 डाईमिथाइल प्रोपेन. आया समझ में? यहाँ पे बस सेकंड एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे अपन देख चुके हैं, ऐसा एग्जांपल अपन पहले देख चुके हैं. यहाँ पे ये वाला आइसोप्रोपाइल क्लोराइड वाला, सेम ऐसा ही एग्जांपल ये वाला है. ठीक है, इससे आप देख के समझ सकते हैं इसको. ठीक है, now nomenclature is clear for everyone. If you have any doubt, then you can use your comment section. I will see there your comment, then I will answer your question. So now you can see here a common UPSC name of some halides. कुछ इंपॉर्टेंट जो हैलाइड्स होता है उनकी जो कॉमन नेम और IUPAC नेम जो होता है, तो यहाँ पे आपको उसका लिस्ट दिया हुआ है. ठीक है, इस लिस्ट से आप देखेंगे जैसे ये वाले आपको कॉमन नेम दिख रहे हैं या IUPAC नेम दिख रहे हैं. जनरली आपको कॉमन नेम नहीं पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, लेकिन आपको इसका ध्यान रखना है. ठीक है, इट्स फॉर योर नॉलेज. ओके, यू हैव टू फोकस ऑन IUPAC नेम विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन कॉमन नेम. ओके, सो let's we see structure first. Okay, first in this structure you can see a chlorine compound is added with the carbon number second, carbon 1, carbon 2 and carbon 3 and carbon 4. So as I told you that in a you can see here carbon number second means 2 chloro
2 chloro. How many carbons are there? 4 carbons are there. Then meth, eth एंड प्रोप एंड ब्यूटेन. ठीक है, यहाँ पे आपको 4 कार्बन मिल रहा है, ब्यूटेन आ रहा है. ठीक है, तो क्लोरो ब्यूटेन आ जाएगा. क्लोरो कितने पे है? 2 पे, तो क्लोरो ब्यूटेन. ऐसे ही आप देख सकते हो नेक्स्ट वाला. इसके अंदर आपको मिल रहा है कितने कार्बन मिल रहे हैं? इसमें आपको मिल रहा है कार्बन नंबर 1, 2 और 3, 5 कार्बन मिल रहा है आपको. ठीक है, 5 कार्बन मिल रहा है. और ब्रोमीन जो आपको मिल रहा है फर्स्ट पे मिल रहा है. ठीक है, तो 1 ब्रोमो. ठीक है, और इस वाले कार्बन पे आपको 3 मिथाइल ग्रुप मिल रहे हैं आपको, है ना. इसके ऊपर इसका अगर अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस वाले कंपाउंड का अगर अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, और इसी कार्बन पे जो आपका है ब्रोमीन जुड़ा हुआ है. ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर बन गया. तो इस पर आपको क्या मिला? 1, 2, 3. ठीक है, 2 पे आपको 2 मिथाइल ग्रुप मिलेंगे. एक मिथाइल ग्रुप आपका यहाँ पे है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे है, एक मिथाइल ग्रुप आपका यहाँ पे है. ठीक है, इसमें आप ऐसे कर लेंगे 1, 2, 3. तो मीन्स 2 पे आपका 2 मिथाइल ग्रुप है. इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो. ठीक है, 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल एंड मैथ एथ प्रोप, मतलब प्रोपेन. ठीक है, you can see here. Now it is clear. और जैसा कि आपने आज नॉमेनक्लेचर सीख लिया होगा, और इसी पे बेस्ट आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस भी हैं, तो आप इसको देख को समझ सकते हैं. और कुछ जो है आपको एग्जांपल्स भी हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके लिए कंपाउंड्स के एग्जांपल भी हैं, तो आप इसका नाम लिख के आप ट्राई कर सकते हैं, है ना. अगर आपको कुछ समझ भी नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है. हाँ, अब नेचर ऑफ CX बॉन्ड, कार्बन अटैच्ड विद हेलोजन कंपाउंड. व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस कंपाउंड व्हेन हेलोजन ग्रुप इज अटैच्ड विद द कार्बन? हाँ, ये कैसे वेरीफाई कर, मतलब कैसे इफ़ेक्ट करता है, तो इसका क्या नेचर होता है, यहाँ पे अपन इसको देखेंगे. ठीक है, तो जैसा कि अभी तक हमने देखा है, यहाँ पे आपको एक टेबल दिखेगी. टेबल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इसके अंदर बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है ना, और जो इसका है एंथैल्पी का जो ऑर्डर है, और डायपोल मोमेंट का ऑर्डर है. यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो टेबल है इस चैप्टर की और इस टॉपिक की, नेचर ऑफ CX बॉन्ड की, तो ये वाली आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर योर बोर्ड्स एंड योर कॉम्पिटिशन एग्जाम, वट एवर एग्जाम यू विल प्रिपेयरिंग फॉर, वट एवर एग्जाम. ओके, so you can see here, first of all discuss with the for the bond length. What is the bond length of the any compound? Bond length is the nothing but it is the power of two compound which is works in a different atoms to attach with each other. Okay, so you can see here bond length of the compound of halogen group is decreasing when we go bottom to up, and we go up to down, it is increasing. Okay, मीन्स फ्लोरीन से अगर आप आयोडीन की तरफ जाएंगे तो आपका बॉन्ड लेंथ जो है बढ़ेगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कैसे बढ़ता है? स्ट्रक्चर जैसे इसका आपका कंपाउंड का जो है साइज बढ़ेगा, इसका आपका बॉन्ड लेंथ भी बढ़ता जाएगा. ठीक है, ऐसे ही अगर अपन देखें इसका जो है एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी में आपको वेरिएशन दिखेगा, है ना. तो इसका एकदम अपोजिट है ना. बॉन्ड लेंथ का जो होता है एंथैल्पी जो होती है एकदम अपोजिट होती है. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अपन ऊपर से अगर नीचे मतलब क्लोरीन से अगर अपन आयोडीन की तरफ चलते हैं तो आपका जो बॉन्ड एंथैल्पी जो है डिक्रीज होंगी. ठीक है, इसी प्रकार अगर अपन देखना चाहें डायपोल मोमेंट ऑफ द कंपाउंड, देन डायपोल मोमेंट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग व्हेन वी गो अप टू डाउन. ओके, क्लियर है सबके लिए? ओके, आगे बढ़े, चलो ठीक है ना. अब अपन इसका प्रिपरेशन मेथड देखेंगे. जो हैलोअल्केन का जो प्रिपरेशन मेथड है ना,
जो हेलो एल्केन का जो प्रिपरेशन मेथड है वो अपन नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होने वाला है, it will come most probably Monday. So be patient, keep practicing, and thank you for watching my video. We will meet as soon as possible. Okay, thank you.